video number 15. This is the long answer of this chapter. So let us start. In first long answer, question is saying explain the old and new concept of economic development. So here, old concept, according to old concept, in old concept of development, materialistic or materialistic facilities, human values were given importance. That is described by the great thinker in his book Arthashastra. The giant thinker of Germany and France considered gold and silver as a state of development. But these concepts of development change with time. For example, Adam thinker, he considered increase of goods and services. That is a symbol of development. Karl Marx, he said that social welfare and socialism, that is the base of social economic development. And therefore we focus in welfare of people. So there is a different thinking of economic development. Here, the new concept of development, according to new concept of economic development, it is a process where economic development depends on increases in national income. This is a result of a long period of time. For example, Paul Albert ने किसी फोकस किया increases in real national income. Williamson and Buster per capita income. इसमें फोकस किया. Data right to improvement in social welfare as well as money. Social welfare और money दोनों में बैलेंस एरिया में बताया प्रोफेसर अमर ने फोकस इन सोशल वेलफेयर. तो दिस एंड प्रीवियस ओल्ड कॉन्सेप्ट कंबाइन करके क्या मिला है नंबर 5. तो दैट सेकंड नंबर सी है. सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे स्टेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स. ये सेकंड the meaning of human development index. Meaning is it is the best indicator of economic development which was started by United Nations Organization. United Nations Organization in the year 1990. This index includes both physical and non-physical factors to indicate economic development. अब देखिए इसकी खासियत क्या है? फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नॉन फिजिकल फैक्टर चाइल्ड मोबिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन. इन दोनों को मिला के इसको डेवलपमेंट लेवल तय करता है. ठीक है. कब शुरू हुआ था? 1990. इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर द लेवल ऑफ डिफरेंस level of development of various countries. Okay, there are three level of classification of development जो कि बोलते हैं component. हाँ, see here level of development या component. फर्स्ट नंबर में हाईली डेवलप्ड कंट्रीज. हाईली डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं? इसको रेटिंग के मिलती है. रेटिंग those countries whose indicators is measured 0.8
0.8 और मोर 0.8 या इससे ज़्यादा आर कंसिडर्ड हाईली डेवलप्ड. ओके, देन मीडियम डेवलप्ड कंट्री, दोज countries are considered to be medium human developed countries whose indicator is measured from 0.5 to 0.8. ठीक है, बीच में जो होते हैं मीन्स 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में. देन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, दोज कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी लो human developed countries whose measure of index is below than 5. जो 5 से कम होंगे वो किस में होंगे? लेस डेवलप्ड कंट्रीज में. तो इस तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 3 क्लासिफिकेशन में, 3 कैटेगरी में कंट्रीज को डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द रेटिंग. रेटिंग क्या है? 0.8 से लेके मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पे so that 0.1 लेके 0.8. ओके, इस तरह से फुल 1 पॉइंट से लेके 0.8 मीन्स 0.8. ओके, सो इन दिस वे दिस आंसर कंप्लीटेड. इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड का और इसको लिखने के बाद. Okay, so let us see the next answer. See here, question number 3 saying distinguish means differentiate between developed and developing countries. Developed and developing countries के बीच के जो अंतर है इसको बताना है, डिफरेंस बताना है developed and developing countries. Okay, so let us see in the book. हाँ, यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो आपको लिखना है यहाँ से, पहले आप हेडिंग लिखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज, ये हेडिंग. फिर डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर द सिटीजन इजली फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड अदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अंडर कंट्रोल ऑफ दीज कंट्रीज. देन यहाँ पे एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक डेवलप्ड कंट्री के बारे में है. अब इसके बाद लिखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज. तो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में लिखेंगे वही चीज़ सेम यहाँ पे रहेगा, बस हल्का सा अंतर होगा कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज are those countries where the citizens easily, फिर यहाँ पे cannot fulfill their needs of food, clothing and other human requirement. Poverty and unemployment are not under control in these countries. अब आई बात एग्जाम्पल्स की. एग्जाम्पल्स में यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एटसेट्रा. ओके, देन इसके बाद आपको ये पूरा बॉक्स बनाना है. ये तो इसमें लिखेंगे फिर आफ्टर राइटिंग दिस एग्जाम्पल द मेजर या द मेजर बेसिस ऑफ डिफरेंस. यहाँ लिखेंगे द मेजर, इसको आप कट कर देंगे, द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. इसके बाद फिर आप पूरा ये कॉपी में बना देंगे कॉलम. 3 कॉलम रहेंगे. एक कॉलम का हेडिंग मेजर, देन दूसरे कॉलम में डेवलप्ड कंट्री, थर्ड कॉलम में डेवलपिंग कंट्रीज. ये उसका
डिफरेंस हो जाएगा। एग्रीकल्चर का क्या लेवल होता है डेवलप कंट्री में, नॉट एग्रीकल्चरल बेस्ड, यहाँ पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और यहाँ पे क्या है जस्ट अपोजिट, ये एग्रीकल्चर बेस होती हैं। इस तरह से यहाँ पे हम पहले आपको समझाया था, इसको आप लिख लेंगे पूरा। तो इट इज़ आंसर नंबर 3। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट। See here, the question number 4. Question number 4 is saying, explain the meaning of economic planning and state the main objectives of planning in India. See here, economic planning. Economic planning means the utilization of natural and human resources. Okay? Planning is the utilization of natural and human resources. In the economic planning, central administration fix some clear and defined aim in fixed period of time. इस प्लानिंग में जो रिसोर्सेज हैं इसके आधार पर एक क्लियर और डिफाइंड एम तैयार किया जाता है इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 5 years, 10 years. There are two essential components of economic planning. Pre-decided aim, I have already explained you. Then description of the use of available resources. Okay? Again, in economic planning, government utilize the resources for maximum satisfaction of society. Means जो resource है उसको किस तरह से यूज करना है कि इसका मैक्सिमम जो लाभ है, जो फायदा है सोसाइटी को मिले। इसमें इन दिस गवर्नमेंट आल्सो एस्टिमेट द फॉरेन रिसोर्स एज वेल एज डोमेस्टिक रिसोर्स। इसके लिए हर कंट्री को ये एस्टिमेट बनाना पड़ता है, एक पहले से लिस्ट बनानी पड़ती है फॉरेन रिसोर्सेज की और डोमेस्टिक रिसोर्सेज की। उसके आधार पर उसे कैसे यूज करना है, कितने समय तक उसको यूज करना है एक पर्टिकुलर एम को पाने के लिए। इसके तहत आफ्टर दिस गवर्नमेंट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव इन बेस्ट मैनर। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सभी स्टेट को ध्यान में रख के काम करती है। जैसे 5-year प्लान है तो 5-year प्लान वो सभी देश के लिए, सभी स्टेट्स के लिए, उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें सभी स्टेट ऐसा मतलब प्लानिंग करना है कि सभी स्टेट को फायदा है। तो यहाँ पे इन बेस्ट मैनर आफ्टर दिस गवर्नमेंट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव इन बेस्ट मैनर। जो प्लानिंग है वो इस तरह से होती है कि पूरी कंट्री उसका फायदा ले, न कि कोई पर्टिकुलर स्टेट। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑब्जेक्टिव प्लीज सी द बुक। सी यहाँ से लिखना है आपको, इन ब्रीफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लान आर एज बिलो। तो हमने पहले समझाया था आपको, यहाँ पे 5 यहाँ पे हैं और 3 नेक्स्ट पेज में। सो फर्स्ट नंबर ऊपर आपको लिखना है, टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, टू ऑब्टेन सेल्फ डिपेंडेंसी, टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, टू ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, then to increase the opportunity of employment, to increase the standard of living and poverty eradication। ये आपके हैं पूरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टेट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो हमने पहले ही आपको ये एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें से पहला सेंटेंस आप लिखेंगे ही, इसके बाद फिर लिखने के बाद 5, तो यहाँ पे आप कर देंगे 13, जो 13 चल रहा है करंट में, इसको कट करके 13th नंबर। देन ये फर्स्ट नंबर ये हमने समझाया था, ठीक है।
जो हमने समझाया था वही इसका ये आपको लिखना है, आप इस तरह से बना देंगे। ओके, पूरा जो हमने समझाया था वैसे ही। देन ये सही पॉइंट्स हमने समझाए थे और हमने एक डेटा भी दिया था, वो सभी डेटाज इंक्रीजेज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हमने सब समझाया था कि 51 और 50 और 51 में कितना इंक्रीमेंट हुआ 2005 से इसको। इस तरह से पूरा जो हमने सेंटेंस दिया था उसी को आप 2 या 2 से 3 सेंटेंस में डिस्क्राइब कर देंगे। ये फिर एजुकेशन एंड हेल्थ, देन प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट ये हमें सब समझाया था। ओके, शॉर्ट कमिंग मीन्स फेलर, तो फेलर में आप ओनली हेडिंग लिख देंगे। ओके, ये हेडिंग ओनली, दिस हेडिंग इट इज सफिशिएंट। ओके, ये 6 हेडिंग है तो आप ओनली 6 हेडिंग को डिस्क्राइब कर देंगे। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे इकोनॉमिक्स वी हैव कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 16 में वी विल स्टार्ट हिस्ट्री। द लेसन इज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। सो आई रिक्वेस्ट यू read it once again before starting the class and try to understand, because it is a history part and it is by reading you can understand. I can't explain here as a mathematics. Okay, so I hope you will complete the economics in fair copy, and whatever your problem I have told you already previously, you can ask me WhatsApp comment. Okay, thank you.